Yes, we are going to start chapter 10, cash book. We have covered yet journal, ledgers, rules of debit and credit, cash basis, accrual basis. We have done journal, right? In journal, what we used to do? We used to do recording. But better sometimes it happens when the business organization is big in size and there are numerous transactions to do. And it is not easy to record all the transaction in one book. We can also segregate this book into the some parts. So it is called subdivision of journal to record different entries in different books. Which type of different I am talking about? First is cash book. I have divided the journal into 6 part here. Although there are 8 parts, but 2 parts are not in your syllabus, so I am discussing only 6 parts. Journal is divided into 6 parts. One more thing, these are the part of journal because these are a division of that. So these all are the primary books. ये भी सारी प्राइमरी बुक्स है, इनका नाम कुछ और चेंज मत कर देना, या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही है ये. बस सिंपली हमने क्या किया है कि एक बुक ना करके बेटा बहुत सारी बुक बना लिया. आपने देखा होगा कई बार आप शॉप पर जाते हो तो कोई कभी पिंक वाली बुक में कुछ नोट कर रहे हैं, कभी ग्रीन सी में, कभी ब्लू सी में, कभी येलो सी में. वो क्यों? क्योंकि एक ही बुक में परचेज, सेल, कैश, रिटर्न सब रिकॉर्ड करते हो तो सर्च करने में प्रॉब्लम होती है. तो इजी है कि आप कैश की अलग मेंटेन कर लो, परचेज की अलग, सेल्स की अलग, परचेज रिटर्न की अलग, like this. So we have 6 part like that. First book is cash book, second purchase book, third sales book, then purchase return book, then sales return and journal proper. These are the subdivision of journal, and all these books are also known as special purpose books or special journals or subsidiary books. Name of these books are special purpose book. I am talking about all this. सिर्फ journal properly नहीं. Special purpose book, special journals. इससे कन्वीनियंट हो जाता है कि इतनी सारी ट्रांजेक्शन एक में ना करके इन बुक्स में कर ली जाए. ठीक है. Why we make the cash book? Cash book is prepared only to do cash transactions and bank transactions. Cash and bank transactions are done in cash book, which we are going to start. The other books, purchase book, sales book. Purchase book is for credit purchase of goods. As on. बेटा ये बाकी सारी बुक्स क्योंकि अगला चैप्टर है हमारा 10A, उसमें डिस्कस करेंगे. फिलहाल because I am going to start cash book, so I am telling you cash book is a primary book. It is a book of original entry in which we record cash and bank related entries, only related to cash and bank. We need to be careful about that. We will record only cash and bank related transaction. That means credit transaction will not record in cash book. So we have different type of cash books in our syllabus also. Types of cash book. Single column cash book where there is only one column of amount. One column is of only cash. Double column cash book. In which there will be two column of amount. One is cash and another is bank. And third type is also there, that is petty cash book. We will discuss it later. Now first I am going to start single column cash book. Format of single column cash book is like, जैसे simple cash book भी कहते हैं. Date, then particulars. We can also write receipt. Particulars, then voucher number, then LF,
then amount, only single column of amount which represent only cash transaction. Then the same on the credit side, date, particulars, voucher number, LF, and amount in rupees. Same, which is on the debit side, the same will be on the credit side. बेटा इसको समझना बहुत इजी है कैश बुक को. देखो किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर कैश की रिसिप्ट होती है, कैश हमारा इंक्रीज होता है, तो वो आएगी हमारी डेबिट साइड में. रूल पता है ना, एसेट सारे इंक्रीज कहाँ पर होते हैं? डेबिट साइड में होते हैं. तो कैश बुक बना रहे हैं तो कैश भी तो एसेट ही है ना. एक और बात बेटा, कैश बुक कैश की ट्रांजैक्शन को एक डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में फिल कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से रिकॉर्डिंग का भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन का भी, मतलब लेजर्स का भी काम कर रहा है कैश बुक. मतलब हम कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसमें, क्लासिफिकेशन भी. बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी मैं करवाऊंगी आपको. फिलहाल द मेन पॉइंट इज कैश बुक. व्हाई कैश बुक इज प्रिपेयर्ड? इट इज प्रिपेयर्ड टू डू कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन. Now single column cash book is maintained only to do the cash transaction. अगर कैश रिसिप्ट हुआ है तो डेबिट साइड में, अगर कैश की पेमेंट हुई है तो बेटा क्रेडिट साइड में. अब आप कहोगे मैम दिस ईयर की, प्रीवियस ईयर की, लास्ट ईयर की. बेटा एनी, whether cash received from sale of goods, whether cash received from sale of fixed asset, whether cash received from cash received of previous year, whether cash received for the next year. आपको सिंपल बस एक ही लॉजिक रखना है, पैसा आया इंक्रीज वाली साइड, पैसा गया डिक्रीज वाली साइड. छोटा सा लॉजिक, अपना सपना मनी मनी. If money increase, that debit side, only cash. I am talking about cash only, not the bank. If cash increase at office, then it will record on the debit side. If cash decrease, then it will be recorded at the credit side. ये रिसिप्ट एंड ये पेमेंट साइड है आपकी. वाउचर नंबर और ये जो बाकी के कॉलम है, वाउचर नंबर एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शंस, जो सपोर्ट करता है, मतलब एक एविडेंसेस होते हैं ना बेटा, वो कि किस रिसिप्ट के थ्रू हमने ये खरीदा है, वो डॉक्यूमेंट. एलएफ मतलब ये किस पेज पर है, लेजर के. जबकि आप अभी मैं बताऊंगी आपको कि क्लासिफिकेशन का मैंने बोला है वर्क करता है. वर्क करने का मतलब ये नहीं कि हम कैश अकाउंट बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बट यहाँ पर मैं आपको एक बाद में लॉजिक क्लियर करूंगी कि मैं क्या कह रही थी. यहाँ पर वाउचर नंबर यानी कि डॉक्यूमेंट एविडेंस जो भी होगा जिस रिसिप्ट के थ्रू आपने रिकॉर्ड करा है. एलएफ यानी कि ये वाली एंट्री लेजर में किस पेज पर है, ठीक है. बट वाउचर नंबर कैन बी इग्नोर्ड. अभी आप इग्नोर कर सकते हो पेपर के लिए, आप मत बनाओ ये वाला कॉलम, एलएफ जाए लेकिन आप बना लें, ठीक है. तो वी विल डू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक. आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 मुझे स्टार्ट करवाना है. पेज नंबर 10.37. टीएस ग्रेवाल सर की बुक से करवा रही हूँ मैं फिलहाल. क्वेश्चन नंबर 1, रविंदर स्टार्ट बिजनेस विद द कैपिटल. आई मस्ट शो दिस क्वेश्चन एंड बिफोर डूइंग दिस students you must have your books so that you can understand better. Okay, this is a question given that Ripender started business with the capital. First I have to make format of this, and for this format date, particulars, I am making LF. Voucher number में नहीं बना रही हूँ अभी, कोई नीड नहीं है. And amount, then date, particulars, LF and amount. Right? Ripender started business with cash. Ripender ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से.
बेटा हम कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग कुछ भी करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट करा रविंदर ने और कैपिटल इन्वेस्ट करी है, दैट मीन्स कैश मस्ट बी इंक्रीज इन द बिजनेस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जब भी कैश इंक्रीज होगा डेबिट साइड में, बट वी विल रिकॉर्ड बाय द नेम कैपिटल। कैपिटल के नेम से अब रिकॉर्ड करेंगे टू कैपिटल 2 लाख रुपीज। Second aspect of transaction will be recorded in that. Now, purchase furniture for cash. Beta, if we have purchased furniture परचेज करा है हमने, तो हमारा कैश इंक्रीज होगा डिक्रीज? ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में नेम परचेजेस का बाय परचेजेस अकाउंट। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया है, सॉरी पहले फर्नीचर था तो बाय परचेज फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि ये एसेट परचेज करते हैं तो एसेट के नाम से आता है। इट वॉज 50,000 एंड देन वी हैव परचेज गुड्स, इट इज ऑफ 30,000। जनवरी 3 एंड जनवरी 2। आफ्टर दैट पेड फिट, हमने फेड पेड करी है, तो पे जहां पर भी आएगा बेटा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा बाय राइट। तो फ्रेज बोल दीजिए आप, इसको फ्रेज बोल दीजिए। इट इज अमाउंटेड टू ₹500। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सोल्ड करिए कैश के लिए, दैट मीन्स कैश मस्ट बी इंक्रीजेस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट 28,000। Then paid to Ramesh, if I have paid then cash decreases by Ramesh 28,000। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कैश इंक्रीज डेबिट, कैश डिक्रीज क्रेडिट, बस यही तो देखना है ना। आपको ये देखना है कि पिछले साल का था या इस साल का है या अगले साल का है, ना आपको देखना कि गुड्स से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है, एक्सपेंस से, और रेवेन्यू से। सिंपल लॉजिक, if cash increase then will be recorded in this side, if cash decrease it will be recorded in this side, right? Sold goods for cash, goods sell करा है कैश के लिए, कैश will increases, if cash increase if cash increases then it will come on the debit side 20,000। paid wages, so cash decreases by wages 10,000। paid goods from Raj on credit, sorry purchase goods from Raj on credit। बेटा if I have purchased goods on credit, गुड्स परचेज करिए, गुड्स इंक्रीज हुई, क्रेडिटर इंक्रीज हुए, क्या कैश का कहीं पर नाम आया? नहीं आया। बेटा जब कैश का नाम नहीं आया, ना कैश आया ना कैश गया, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम जनवरी 25 के लिए यहाँ पर नोट डालेंगे, दिस एंट्री विल नॉट recorded in cash book because it does not involve cash movement। ना कैश आया ना कैश गया, तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। मैंने डेट्स नहीं डाले, आप बाकी पुट कर लेना। देन पेड रेंट बाय चेक, अगर रेंट चेक से पे किया है सो मेरा बैंक डिक्रीज हुआ होगा, मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ होगा, और मैं क्या बना रही हूँ, कैश बुक, सिर्फ कैश कॉलम वाली। क्या ये एंट्री रिकॉर्ड होगी? इट विल ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड एंड रीजन विल बी द सेम, क्योंकि कैश का मूवमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ बैंक का हुआ है, तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। I think it must be clear to all of you once.
ओके, वी विल चेक ऑल द ट्रांजेक्शन कि हमने अमाउंट सही किया है कि नहीं। मेरे पास बुक दूर है। सारी ट्रांजेक्शन पुट करने के बाद वही जो आप करते हो लेजर में, आप डेबिट साइड का टोटल करोगे, क्रेडिट साइड का करोगे। ग्रेटर टोटल विल बी पुट ऑन द बोथ साइड। कैश बुक क्योंकि एसेट से रिलेटेड है सिर्फ, तो इसका डेबिट साइड ही ज्यादा आएगा, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। और यहाँ भी, क्योंकि कैश का कभी भी बैलेंस नेगेटिव नहीं होता। कैश हमारी क्या है, एसेट है, और एसेट का बैलेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कैश 1000 है और मैंने किसी को 5000 दे दिए, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट will be noted that cash column will always had the debit balance. The debit side will be always greater than the credit side, and on the credit side we will not buy balance CD. The difference will be not here. आप इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस कर दोगे और यहाँ पर बैलेंस फाइंड कर दो। और ये अब आपका काम है, इसे लिख रही हूँ बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन आता है कैश बुक का क्या बैलेंस क्रेडिट हो सकता है? देन आंसर विल बी नो। Cash book single column, that means cash column can never have the credit balance. It will always the debit balance, that means debit side will always greater than the credit side, because cash is an asset and assets don't have the credit balance. बैंक का हो सकता है, वो मैंने आपको क्लियर किया था, और मैं आगे डबल कॉलम जब करवाऊंगी तब वो भी कर दूंगी। बेटा और एक बात, अगर मैं कह रही हूँ मनी आना मनी जाना, डजंट मीन कि मनी का इन्वॉल्व होना। बेटा सारी ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड तो है ही, ऑन द स्पॉट कैश के मोमेंट की बात कर रही हूँ मैं। अभी कैश का मोमेंट हो रहा है तो इसमें रिकॉर्ड होगा, कैश का मोमेंट नहीं हो रहा तो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा। और ये बैलेंसिंग करना आपका काम है, ट्रांजेक्शन्स को चेक करना आपका काम है। हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई हो। यहाँ पर ये 30,000 है परचेज का, और ये 20,000 है जो पेड किया था रमेश को, राइट। तो कैश बुक सिंगल कॉलम मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। क्या ध्यान में रखना है कैश बुक में कि आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में पैसा आया, कैश आया इस साइड, कैश गया इस साइड। पैसा में भी सिर्फ कैश। जब डबल कॉलम करेंगे तो हम बैंक की भी बात करेंगे, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कैश। If cash increases, it will record on the debit side. If cash decreases, it will be recorded on the credit side. बस इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर इन सिंगल कैश बुक। कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन मतलब पेड थ्रू द बैंक है तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी। हाँ, बैंक से पैसा निकाल के यहाँ पर लाए हैं तो वो रिकॉर्ड होगी। सिंपल लॉजिक फिर से, ऑफिस में कैश मतलब बिजनेस में कैश इंक्रीज या डिक्रीज ही सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, इसके अलावा कुछ भी कैश बुक में रिकॉर्ड सिंगल कॉलम में नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। यू मस्ट क्लियर ऑल दिस थिंग्स अगेन।